Hello students. In the previous video we had looked at how do you find out empirical formula, how do you find out molecular formula. Okay. So now in this lecture what we are going to do is we are going to continue further with that concept. Okay. At the same time now we will look at something called as solutions. So हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वो देखा था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट्स हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में ही प्रेजेंट होता है. ओके यही किसी भी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्स प्रपोर्शन. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स प्रपोर्शन. ओके नाउ इफ आई टेल यू, इफ आई लेट्स से मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ कंपाउंड हैज let's say 3.4%, a compound has let's say 10% sulfur content in it. Okay. So what is the minimum molecular weight of the compound? Find minimum possible molecular weight of the compound. Find minimum possible molecular weight of the compound. Okay. हाँ जो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ. हाँ ये क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सी दिस कंपाउंड इट इज गिवन टू यू दैट इट हैज सल्फर इन इट. सो मान लो कि अगर जो आपका कंपाउंड X है तो ये कंपाउंड X ऐसा कुछ होगा ना, इट विल हैव कुछ तो होगा एंड देन इट विल ऑल्सो हैव, so there will be other atoms and along with other atoms there will also be some sulfur atoms. Some say number of sulfur atoms is n. समझ में आया आपको? When I say a compound has hydrogen, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स तो है ही, बट ऑल्सो देयर विल बी सम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट? सो उसी तरह से ये जो कंपाउंड है X, दिस इज बेसिकली इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. समझ में आया? सो दिस बाकी कौन से एटम्स है हमें नहीं पता, बट वी नो दैट देयर इज श्योरली सल्फर एटम इन इट, सल्फर इन इट. ओके सॉरी फॉर द ब्रेक. सो अगर जो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो देयर विल बी फ्यू सल्फर एटम्स. कितने सल्फर एटम्स है हमें नहीं पता, सो लेट्स से देयर आर n सल्फर एटम्स. ओके अब इन्होंने आपको ये दिया हुआ है कंपाउंड हैज 10% सल्फर कंटेन इन इट. So how do you find out percentage sulfur? Percentage of sulfur is simply equal to mass of sulfur divided by total mass, that is molecular mass. So molecular weight, total molecular mass into 100. आप into 100 करते हो. Now, how much would be the mass of sulfur? There are how many sulfur atoms? There are n sulfur atoms into sulfur का atomic weight. Let me write it as AS. AS represents the atomic weight of sulfur divided by molecular mass of the compound. Let me write it as M, capital M. Please remember molecular weight and molecular mass are same. मैं कई बार molecular weight use करूंगा ये word, कई बार molar mass use करूंगा, but that is one and the same thing. Okay, so this is equal to the percentage of sulfur. now आपको percentage of sulfur question में दिया हुआ है 10%. so percentage है तो मैं पहले तो 100 से multiply कर दूंगा. so this is given to you as 10. okay, so if I just cross multiply this, मुझे ये चाहिए, I need molecular weight of the compound. so molecular weight of the compound is n, atomic weight of the sulfur is 32 divided by 10 into 100. This is something that you have to remember, atomic weight of sulfur. So ये कट हो जाएगा. Okay. So molecular weight या molar mass will be equal to 320 times n. Now n is basically, what is n? n is number of sulfur atoms in a compound. Sulfur atoms in a compound. ठीक है. So n is nothing but number of sulfur atoms in a compound. समझ में आया ये आपको? Okay. Now n, because it is number of sulfur atoms, it has to be a natural number.
integer basically. So numbers have to be either 1, 2, 3. ऐसा नहीं होता ना 1.5 एटम्स है, 2.3 एटम्स है, ऐसा नहीं होता. वैसे ही नेगेटिव एटम्स भी नहीं होते, जीरो एटम्स भी नहीं होते. सो व्हेन आई से सल्फर इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो इधर उस मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर का एटम होगा, दो सल्फर का एटम, दो हो सकते हैं, तीन हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो बेसिकली यहाँ पे जो n है, दैट n इज अ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. नाउ यू कैन सी दैट मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा. आप n की वैल्यू कम करते जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा. अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड. मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट. ओके, सो आपको m मिनिमम चाहिए. यू वांट दिस एज मिनिमम. तो ये मिनिमम तब होगा व्हेन दिस इज मिनिमम. करेक्ट? This will be minimum when this is minimum, and minimum value of n is equal to 1. n की वैल्यू सबसे छोटी 1 ही है ना, बाकी सारी वैल्यूज 1 से ज्यादा ही है. So to find minimum molecular weight, therefore m minimum will be equal to 320 into n minimum, minimum value of n, that is 320 into 1, that is 320 AMU. This will be the molar mass. Okay, that is mass of one molecule. अगर जो आपको molecular weight जो है या molar mass जो है, molecular weight या molar mass, इसके जो यूनिट्स होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं ग्राम्स पर मोल. एंड मैंने आपको कल बताया था molecular weight is simply equal to ये AMU के जगह पे बस आप 320 लिख दोगे, grams per mole. Okay, so 1 mole of this compound, उसका मास जो होगा that will be 320 grams. So molecular weight या molar mass के जो units होते हैं वो होते हैं grams per mole. Okay, and the answer would be 320 grams per mole. Fine. Okay, so आपको ये समझ में आया कि अगर जो मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो आपको ये अज्यूम करना है कि उस एलिमेंट का कम से कम उस एलिमेंट का एक ही एटम प्रेजेंट होगा. n विल बी इक्वल टू 1 एंड उसके बेसिस पे फिर आप कैलकुलेशंस करोगे. ठीक है? ओके, नाउ आई होप सिंस आफ्टर दिस वी विल गो ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज सॉल्यूशंस. ओके, ना जैसे हमने बताया कि कोई भी जो कंपाउंड होता है दैट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड हर एक एलिमेंट का अपना एक परसेंटेज होता है. उसी तरह से सॉल्यूशंस जो होते हैं, सॉल्यूशंस आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स. ओके, सॉल्यूशंस आर मिक्सचर. सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में होता है. सॉल्यूशन में जो होता है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होता है वो कंपोनेंट्स फिक्स प्रपोर्शन में नहीं होते. आप उनका प्रपोर्शन जो है वो वेरी कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर. Mixture of various components. ठीक है? It is basically called as mixture of various components. Okay. Now यहाँ पे हर एक solution के अंदर दो components होते हैं which are very very important. One is solute and second one is solvent. Solute is something that is present in large quantity. Solute is something that is present in small quantity, and solvent is something that is present in large quantity. Okay. Now solute जो होता है, solute will give character. किसी भी solution की जो properties होती है वो properties solute पे depend करती है. So properties of solution depend on solute. Okay, so even though solute is present in small quantity, solute जो होता है वो solution की properties determine करता है, determines the properties of the solution. Now let me give you an example. आप जब नींबू पानी बनाते हो, lime water,
तो वहां पे पानी जो होता है, पानी इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, सो वाटर बिकम्स योर सॉल्वेंट। बट नींबू पानी का टेस्ट पानी के वजह से नहीं आता ना, नींबू पानी का टेस्ट आता है नींबू के वजह से, इसलिए आप नींबू पानी कहते हो, अदरवाइज तो बस पानी कहते हैं। सो लेमन जो होता है, इवन दो लेमन इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, लेमन जूस, ओके, लेमन के हम लोग स्क्वीज करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉप्स गिरता है, बट स्टिल लेमन ही इसको कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो लेमन पे ही डिपेंड करती है। सो लेमन बिकम्स योर सल्यूट। ओके, नाउ कई बार कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं, सो अब आप हर बार जब नींबू पानी बनाते हो तो जरूरी नहीं ना कि हर बार सेम टेस्ट है, कई बार थोड़ा ज्यादा खट्टा हो जाता है, कई बार थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाता है। जब वो खट्टा ज्यादा हो जाता है तो इट मीन्स लेमन ज्यादा होगा उसके अंदर, कई बार बहुत ज्यादा मीठा बन जाता है तो इसका मतलब शुगर उसमें ज्यादा होगी। सो बेसिकली नींबू पानी कैसे बना है, उसमें कौन सा कंटेंट ज्यादा है, सल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करने के लिए आप टेस्ट करते हो ना इसको, यू टेस्ट इट एंड टेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि अच्छा लेमन कितना होगा, ये खट्टा तो नहीं है, ज्यादा मीठा तो नहीं हुआ है, करेक्ट। मान लो घर पे कोई मेहमान आता है तो आप जब नींबू पानी बनाते हो तो सर्व करने से पहले आप एक बार खुद टेस्ट कर देते हो कि सही से बना है या नहीं बना, ओके। इसी तरह से कोई भी सोल्यूशन जो होता है, हर एक सोल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना होता है, सॉल्वेंट कितना होता है, उसको चेक करने का एक तरीका होता है, ओके ना। वो जो तरीका होता है उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। So concentration of a solution is basically its intensive property. Now intensive property क्या होती है, वो ऐसी property which does not depend upon the quantity of the substance. Okay. Now let me give you an example. आप जब नींबू पानी सर्व करने वाले होते हो, आप टेस्ट करते हो, आप टेस्ट कितना करते हो, हाउ मच डू यू टेस्ट इट और हाउ डू यू टेस्ट इट। आप चम्मच में थोड़ा सा लेते हो और टेस्ट करते हो ना, ऐसा नहीं है ना यार ग्लास भर देना है किसी को तो ग्लास भर पूरा आपने टेस्ट किया, ऐसा नहीं करते ना। द रीजन इज बिकॉज कि चम्मच में जो आप नींबू पानी देते हो और आप जितना उसका टेस्ट, जैसा उसका टेस्ट होता है, बाकी पूरे नींबू पानी का भी टेस्ट वैसा ही होगा। तो जो टेस्ट है वो टेस्ट डिपेंड नहीं करती ना कि वेदर आप ग्लास भर के नींबू पानी पी रहे हो या एक स्पून भर के ही बस नींबू पानी पी रहे हो, दोनों का टेस्ट सेम ही है। तो टेस्ट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। इट डज नॉट मैटर हाउ मच क्वांटिटी यू हैव, एक बार ये नींबू पानी बन जाता है तो वेदर यू टेस्ट अ स्पून ऑफ लाइम वाटर और यू ड्रिंक एंटायर ग्लास, दोनों का टेस्ट जो है वो सेम ही आएगा। अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो आप ये पूरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो या फिर इसमें से बस एक स्पून निकालो और उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगा। नाउ व्हाट डज कॉन्सेंट्रेशन टेल यू, कॉन्सेंट्रेशन आपको ये कहता है कि हाउ मच सल्यूट इज प्रेजेंट in the given amount of solvent, in the given amount of solvent। ठीक है, सो आई कैन से दिस, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेजर्स so how much solute is present in the given amount of solvent, okay। now यहां पे तो नींबू पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगर जो आपको जानना हो तो आप बस टेस्ट करते हो ना उसको, बट मान लो HCl सोल्यूशन दिया हुआ है तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते ना, या मान लो साइनाइड सोल्यूशन दिया हुआ है कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट कर दिया तो मतलब इस जन्म में तो आप आंसर बता नहीं पाओगे, राइट। समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में देयर हैज टू बी सम मेजर, कोई एक मेजर होना चाहिए, ओके, कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफाई करने का कि ये सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है, सल्यूट कितना है। सो देयर हैज टू बी सम सिंपल वे ऑफ डूइंग इट, ओके। नाउ एक तरीका ऐसा है कि लेट्स से यू हैव 2 liters ऑफ वाटर एंड यू हैव 10 grams, मान लो ये शुगर सोल्यूशन है एंड यू हैव लेट्स से 50 grams ऑफ शुगर। तो एक तरीका तो ऐसा है लिखने का
50 grams of sugar in 2 liters of water. ठीक है, आप इस तरह से ये सोल्यूशन को स्पेसिफाई कर सकते हो. बट आप समझ रहे हो ये कितना इनकन्वीनियंट है यार, कितना बड़ा ये, हर बार आपको इतना बड़ा ये फॉर्मूला दिखना है. उससे बेटर है कि देयर हैज टू बी सम अदर वेज ना, कन्वीनियंट वेज ऑफ मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. ओके, सो हाउ डू यू मेजर? तो इसके लिए बेसिकली देयर आर 3 to 4 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोलारिटी. सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ मोलारिटी. अब वापस और फॉर्मूलेज आएंगे, आपको वापस वो फॉर्मूला शीट में ये सारे फॉर्मूलेज पुट करना. सो मोलारिटी ऑफ solution. Molarity of solution, it is represented also by capital M. Okay, so how do you measure molarity of the solution? It is basically number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Okay, so molarity of a solution is defined as number of moles of solute divided by volume of solution. See, हमेशा 3 चीजें होंगी यहाँ, solute, solvent and solution. When you remember a formula, be very specific, be very clear कि numerator में ये solute है, denominator में what you have is a solution. Okay, अच्छा, वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स, ये लीटर्स में ही होना चाहिए. सो अब इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सो SOLN इन लीटर्स. दिस इज हाउ यू डिफाइन मोलारिटी एज. ओके, ये हो गई मोलारिटी. अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, दैट नेक्स्ट फॉर्मूला इज बेसिकली समथिंग कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, ये मोल फ्रैक्शन ना नॉर्मली सोल्यूशंस के लिए ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है, ये किसी भी मिक्सचर के लिए अप्लाई होता है. मान लो एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर 3-4 अलग अलग चीजें मिक्सड है, A, B, C, D. ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, लेट्स से NA है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C NC, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D ND. तो अब अगर जो आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन किसी का भी, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ओके, एंड मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, दिस वन, ये x जैसा होता है. सो दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर मोल फ्रैक्शन. ओके, सो इसके अंदर, सो एग्जांपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको लिखा जाता है XA. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. So that is number of moles of A. Total number of moles is Na plus Nb plus Nc plus Nd. ठीक है, so this is how you find out the mole fraction. उसी तरह से if you have a solution, we know that ये solution के अंदर वापस 2 चीजें होंगी, एक होगा solute एंड एक होगा solvent. ओके, सो अगर जो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, दिस विल बी योर टोटल नंबर ऑफ मोल्स. डिनोमिनेटर, ये आया समझ में? सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? लेट मी राइट इट ओवर हियर. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय
number of moles of solute plus number of moles of solvent. This is how you find out mole fraction of solvent. ठीक है. अब मान लो कि ये एग्जाम्पल, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल देते हैं और यहां पे इन चारों के मोल फ्रैक्शन हम लोग ऐड करते हैं. XA plus XB plus XC plus XD. So this is Na upon N total plus NB upon N total plus NC upon N total plus ND upon N total. अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप सीधा ऐड करो. Na plus NB plus NC plus ND divided by N total. N total is nothing but this, na? Na plus NB plus NC plus ND. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है. दिस इज इक्वल टू 1. सो व्हाट यू रियलाइज इज कि आप जब किसी भी मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करते हो तो आपको आंसर 1 आता है. सो आई कैन सिंपली राइट, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं ना, summation of all mole fractions is always equal to 1. जैसे आप ये सोल्यूशन देखो तो सोल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स है? 2 ही कंपोनेंट्स है. एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट. तो 2 ही कंपोनेंट्स है तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर जो आप ऐड करते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा? टोटल विल बी इक्वल टू 1. ठीक है. सो पहला जो फॉर्मूला हमने देखा था दैट वाज मोलारिटी. सेकेंड फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा दैट इज मोल फ्रैक्शन. ओके. द थर्ड फॉर्मूला नाउ दैट वी विल लुक एट इज कॉल्ड एज मास परसेंट. ओके, मास परसेंट. ओके, ऑफ solution. Now mass percent कैसे डिफाइन किया जाता है? मास परसेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ solute divided by total mass of solution into 100. Mass of solute divided by total mass of solution into 100. When you do this, what you get is मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. आपको सोल्यूशन का मास परसेंटेज मिल जाता है. ओके, सो दिस इज थर्ड फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड द फोर्थ फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर इज समथिंग कॉल्ड एज मोलारिटी. मोलारिटी के लिए हम लोग स्मॉल m ये वेरिएबल यूज करते हैं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोलारिटी जो हमने पहले देखा था. This is molality. This is defined as or calculated as number of moles of solute divided by mass of solvent. Solution नहीं, डिनोमिनेटर में आप solvent आ रहा है, पहली बार solvent आ रहा है, नहीं तो हर एक केस में हमेशा solution आता था. So you have mass of solvent and you have to take it in kilograms. आपको याद है कल जब मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आई हैड टोल्ड यू कि केमिस्ट्री में आप मास जो है वो हमेशा ग्राम्स में लोगे. देयर आर वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन यू विल टेक इट इन किलोग्राम्स. सो दिस इज वन ऑफ दोज टाइम्स जहां पे आपको जो मास है वो किलोग्राम्स में लेना है. यू हैव टू कंसिडर इट इन किलोग्राम्स. ठीक है, ये आया समझ में आपको? ओके, फाइन. सो अच्छा, कभी कभार वॉल्यूम परसेंटेज भी हम लोग यूज करते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज इज वेरी सिंपल. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ओके, सो हमने बेसिकली 4 अलग अलग तरीके पढ़े हैं कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के. वन इज मोलारिटी, सेकेंड वन इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड वन इज मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन, फोर्थ वन इज मोलारिटी. हर एक फॉर्मूला जो है, ये हर एक फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, देयर आर चांसेस कि आप इन फॉर्मूलेज में सिली एरर्स कर दोगे, तो वो नहीं होनी चाहिए. सो प्लीज अवॉइड दो सिली एरर्स. फाइन. ओके, सो यहां पे हमने काफी सारी
चीजें कवर कर दी है। जो अब चीजें बचती है, दोज आर बेसिकली दोज थिंग्स जहां पे केमिकल रिएक्शंस आएंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आएंगे। आपने जो शायद 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, उन्हीं लॉज के बेसिस पे अब हम लोग थियरी और आगे बिल्ड करते जाएंगे। बट वी विल नॉट डू इट in this lecture, we will do that in the next lecture. So what we will do now is we will do few questions which are based on this. Okay, fine. Okay, so fine, एक simple question करते हैं. The question is 2 grams of NaOH is dissolved in 200 ml of solution. Okay, आपको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी. अब हाउ विल यू फाइंड आउट? मोलारिटी भी फाइंड आउट करता है, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करता है. सो वी नो दैट मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी का फॉर्मूला आपकी, अगर जो आप आपकी शीट देखो, फॉर्मूला शीट जहां पे आपने ये सारे फॉर्मूलेस लिख दिए. ओके, फर्स्ट राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलेस इन योर फॉर्मूला शीट, उसी के बाद आप वीडियो आप आगे कंटिन्यू करो. सो व्हेन वी टॉक ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी इज डिफाइंड एज, we know that it is number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So number of moles of NaOH, यहाँ पे आपका NaOH जो है वो solute है and it is dissolved in water. दिया हुआ नहीं है तो आपको assume करना है कि आपका जो solvent है that is water. So number of moles of NaOH divided by volume of solution in liters. Now number of moles of NaOH. So ideally इन क्वेश्चंस के लिए ना मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप वापस टेबल बनाओ. टेबल के अंदर 3 चीजें होंगी, सल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन. ओके, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है. मास ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम्स. आपका जो सल्यूट है दैट इज NaOH. सोडियम का एटॉमिक मास इज 23, ऑक्सीजन का इट इज 16, हाइड्रोजन का इट इज 1. इसके बेसिस पे आप मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 40. इसके अलावा आपको 200 ml ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है दैट इज 200 ml. नाउ वंस यू हैव टेबल विथ यू ना, अब पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हर बार चाहिए ही होता है. So number of moles is mass upon molar mass. So 2 upon 40 that is equal to 1 by 20. Okay. And volume of solution we would need it in liters. तो ये 200 upon milliliters को liters में कैसे convert करोगे? 1000 से divide करोगे. तो you will get this as 2 by 10 that is 1 by 5 liters. Now once you have both these numbers, अब यहाँ पे जाता है number of moles of NaOH. It is 1 by 20. Volume of the solution, it is 1 by 5. तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, this will be equal to 5 by 20. So this is 1 by 4 molars. So molarity is equal to 1 by 4 molar. ये आया समझ में? So हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये चीजें लिखने से पहले एक टेबल बना दो. देखो टेबल में क्या क्या दिया गया है, एंड वो चीजें लिखने के बाद फिर ही आप आपके मेन क्वेश्चन पे आओ. अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन अगर जो आपको फाइंड आउट करना हो, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉल्वेंट का भी मास पता होना चाहिए. बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यू कैन नॉट डू दिस. फिर आप ये क्वेश्चन आगे नहीं कर सकते. तो एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जहां पे मोल फ्रैक्शन भी आपको फाइंड आउट करना होगा. ओके ओके, द क्वेश्चन इज 73 grams of HCl is dissolved in water to form 1.5 liters of solution whose density is 1.2 grams per ml. Find the mole fraction of HCl. आपको HCl का mole fraction जो है वो find out करना. Now वापस हम लोग ये टेबल बनाएंगे. आपका solute जो है, so you have solute, solvent, solution. Solute is HCl. It is dissolved in water, so solvent is water, and आपका ये solution बन गया.
Now mass of HCl is given to you 73 grams. Okay. Molecular weight of HCl, hydrogen का atomic mass is 1, chlorine का it is 35.5. So 1 plus 35.5, this will be 36.5. So number of moles will be 73 upon 36.5, that is equal to 2. So number of moles of solute is 2. Now यहाँ पे volume of solution is given to you as 1.5 liter. Density is given to you as 1.2 grams per ml. See, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको इसके भी मोल्स चाहिए होंगे ताकि आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर पाओ. ओके, तो इसके मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको वाटर का मास चाहिए होगा. हाउ विल यू गेट द मास? सो यहां पे आपका टोटल मास कितना हो जाएगा? सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये आपको पता ही है. वॉल्यूम इज 1.5 लीटर्स. सी, ये लीटर्स में और डेंसिटी मिलीलीटर्स में, तो इसको भी मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर दो ताकि आप मल्टीप्लाई कर पाओगे. सो 1.5 लीटर्स इज 1500 ml इंटू 1.2 ग्राम्स पर ml. तो ये कट हो जाएगा 1500 इंटू 1.2, ये होगा 1800 ml, 1800 grams. Now total mass of the solution is 1800 grams. Now इस 1800 grams में से सल्यूट का मास 73. सी, सोल्यूशन का जो मास होता है वो बस इसके और इसके वजह से आता है. तो टोटल मास इज 1800 ग्राम्स, इसका मास 73 ग्राम्स है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 1800 माइनस 73, दैट इज 1727 ग्राम्स. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू 18. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1727 divided by 18. So 18 9s are 162 होता है. This will be equal to, ये close to 96 आएगा. ओके, ना अब आपको क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन एन टोटल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आपको पता ही है 2 है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2 plus 96. So this is 2 divided by 98. That is roughly 2 upon 100 ना. 98 is very close to 100. So that is 0.02. So ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? मैंने आपको बताया था this plus this is equal to 1. तो सॉल्वेंट का होगा 1 minus 0.02, that is 0.98. ठीक है. I hope you have understood this. Okay, thank you.